if you're somebody who doesn't believe in God, a higher power, spirituality, so you're basically an atheist या फिर हिंदी में बोलते हैं नास्तिक, then you, my friend, should definitely watch this video till the end. अगर आपने मेरे vlog का पहला part नहीं देखा where I got this tattoo, I will link it somewhere here and please go watch it. Help a girl out, give her some watch time. And secondly, if you do want to turn on subtitles for this video, you can turn on the English subtitles where it is actually a mix of both English and Hindi, so it's like a Hinglish. I do edit them myself. For this video, I might just have inbuilt subtitles. For all my other videos, you can just turn them on. So basically, me and my sister took a night bus from Chandigarh to Kullu around like 10 p.m. at night, I think, I'm not sure. Me and my sister both have extreme road sickness, but we actually looked at the flight and it cost us like 25k one way, and with that kind of money the only place I'm going to is Goa. So we took the night bus and surprisingly the driver was really good at driving. हम हमेशा खाली पेट जाते हैं, or we have dinner 2 or 3 hours before so that we don't end up puking on the bus. But yeah, we just slept our way through and it was quite fine. Around 10 or 10:30 we boarded our bus, and our heart sank when we saw our bus because the bus that we booked online had 2 window seats, लेकिन जो बस हमारे आंखों के सामने खड़ी थी that had 3 window seats, where the first 2 were booked by us, लेकिन जो तीसरी वाली थी उस पे एक आदमी बैठा हुआ था, and it was not जब we met का आदित्य वाला scene at all. It was creepy and we were like, shit, do we really have to sit next to him for the entire 10-hour journey? And फिर एक गॉड सेंड, एक भगवान का भेजा हुआ मसाया आया एंड ही सेड दैट दिस इज द रॉन्ग बस दैट यू आर लुकिंग एट, आपकी बस अभी आएगी. एंड वी वर लाइक, ओह थैंक गॉड. एंड सो ये हमारी बस है और यहाँ पे ना बड़ा गंदा सा आदमी हमारी सीट के साथ बैठा था, तो आई वाज लाइक थैंक गॉड. बट उन्होंने बोला कि इसके बाद एक और आएगी, वो हमारी वॉल्वो होगी. सो थैंक गॉड, बिकॉज उसमें हमने विंडो सीट बुक करी थी. We were like very relieved. We were especially traveling to Kullu to witness the Kullu Dussehra, which is a very famous event, and we were actually going to stay at a family friend's place. It is Garmadi. So Garmadi was my sister's roommate back when she was a student. She is still a student. So Garmadi and her brother came to pick us up at 5 a.m. in the morning, and then we just crashed at their place. We crashed because we were sleeping in like curved positions the entire time, and it was just nice to have a flat surface to sleep on. Hello guys, it's a beautiful, क्या दिन है आज? Wednesday morning. एंड हम पराठे खा रहे हैं इन कुल्लू. एंड देखो हमारे आलू के पराठे, और हमारी होस्ट है अंदर, हमारे लिए पराठे लेके आ रही है. My ex roommate and best friend. वाह. हेलो, आज है हमारा डे 1 मनाली में. यह हमारी होस्ट कुल्लू में, यह हमारी होस्ट गर्मदी, ये है मेरी बहन गायत्री दीदी. और हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ? इतनी जल्दी बोला आपने. दशहरा ग्राउंड जा रहे हैं हम. हमें गर्मदी के भाई छोड़ेंगे, है ना? हाँ, बंद कर बंद कर मैं बेइज्जती करती हूँ उसके बाद. यही उतर जाए या तो. So the very first thing we did in Kullu was that we went to the Raghunath temple, and as we walked to the temple, I will tell you the story of the Kullu Dussehra, all of which I learned from Garmadi या फिर I looked it up online. So here we go. राजा जगत सिंह, जिन्होंने कुल्लू शहर पे राज किया था 1637 से 1657 तक, उनको एक दिन पता चला कि
उनके तिपरी विलेज में एक ब्राह्मण है दुर्गा दत्त, जिनके पास बहुत ही कीमती मोती है। तो राजा जगत सिंह ने अपने दरबारियों को दुर्गा दत्त के पास भेजा वो मोती बरामद करने के लिए, और उस दौरान उन दरबारियों ने दुर्गा दत्त को बहुत ज्यादा परेशान किया। राजा जगत सिंह से पहुंचाया हुआ कष्ट दुर्गा दत्त सहन नहीं कर पाया और उसने अपने आप को अपने परिवार समेत जला दिया। लेकिन जलाने से पहले उसने राजा जगत सिंह को एक श्राप दे दिया। अब दुर्गा दत्त और उनका परिवार तो नहीं रहा, लेकिन उनके दिया गया श्राप, या फिर कह लीजिए कि राजा जगत सिंह को जो पछतावा था, उसके वजह से उनको अपने खाने में कीड़े और अपने पानी में खून दिखने लग गया। हालांकि पूरे इंटरनेट पे ये कीड़े और खून वाली कहानी मेंशन्ड है, लेकिन गरिमा दी ने कहा था कि राजा जगत सिंह को एक्चुअली कोड़ियों की बीमारी हो गई थी। हमें ये तो नहीं पता कि कौन सी कहानी सच है, लेकिन हमें ये पता है कि राजा जगत सिंह को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो कोई हकीम, कोई सेंट, कोई पंडित, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तो एक बैरागी पहाड़ी बाबा थे जिन्होंने राजा जगत सिंह को ये सुझाव दिया कि अब उन्हें सिर्फ भगवान श्री राम ही बचा सकते हैं, और उनके सुझाव से और उनकी मदद से उन्होंने अयोध्या के त्रेतनाथ टेम्पल से, वही अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि है, वहां से श्री रघुनाथ जी की जो मूर्ति है उसे लाके सुल्तानपुर कुल्लू में स्थापित कर दी। और वही मंदिर में हम एक्चुअली सबसे पहले गए थे कुल्लू में। मैं तो ऑलरेडी थक गई। अबे मेरे को रोकता रहता है लिए, लेकिन एक ही स्टोरी है, क्योंकि गरिमा दी ने हमें ये बताया था कि एक्चुअली में जो श्री रघुनाथ जी की जो मूर्ति है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इतना मुश्किल है विदाउट हिज कंसेंट। कंसेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। तो बहुत बारी जब आप उनको उठाते हो तो वो बहुत भारी हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने स्थान से नहीं जाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं होता है उन्हें मूव करना। तो राजा जगत सिंह एक्चुअली अयोध्या गए थे और उन्होंने पूरे 1 साल तक उनके पूरे रीति रिवाज सीखे, उनका पूरा रूटीन सीखा और उनकी बहुत सारी सेवा करी। फिर एक दिन, क्योंकि रघुनाथ जी को उनसे इतना लगाव हो गया था, वो श्री रघुनाथ जी को उठाकर क्या, वो चुरा कर वो कुल्लू सुल्तानपुर में ले आए। 1651 में रघुनाथ जी की स्थापना हुई सुल्तानपुर कुल्लू में, और अयोध्या के ही पंडित आए थे उनको स्थापित करने के लिए। बट गरिमा दी की स्टोरी के हिसाब से, और वैसे भी अगर आप सोचें तो रघुनाथ जी सबके प्रिय हैं, तो उनके सेवक, उनके जो पंडित हैं, वो अपने भगवान किसी को क्यों देंगे किसी और शहर में स्थापित करने के लिए। इसलिए दूसरी स्टोरी कि उनको चुरा लिया गया था मेक्स मोर सेंस टू मी। लेकिन कंटिन्यूइंग विद दी स्टोरी, जब उनको कुल्लू में लाया गया, उनको बहुत याद आ रही थी अपने गांव वालों की और अपने लोगों की। तो रघुनाथ जी बहुत उदास हो गए और उनकी मूर्ति ऑलरेडी काफी छोटी है, इट इज द साइज ऑफ योर पाम, और वो और छोटी हो गई बिकॉज वो इतने उदास हो गए थे क्योंकि उनको अपने गांव और अपने घर की याद आ रही थी। तो राजा जगत सिंह ने अयोध्या से एक परिवार को घर दिया कुल्लू में, और आज भी वो घर वाले वहीं रहते हैं और वो एक खिड़की से रघुनाथ जी को देख सकते हैं और रघुनाथ जी उनको देख सकते हैं। अब उनको सिर्फ एक खिड़की से इसलिए देख सकते हैं क्योंकि राजा जगत सिंह को डर था कि जिस तरह उन्होंने रघुनाथ जी को चुरा लिया था, कहीं अयोध्या वाले लोग भी उन्हें वापस ना चुरा ले, ये नया परिवार उन्हें ना चुरा ले। और जैसे कि आपको, मेरे को और राजा जगन्नाथ सिंह को अपेक्षा थी, वैसे ही उनकी कोड़ियां या हेलुसिनेशंस की बीमारी ठीक हो गई। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात। और इसलिए आसपास के सारी देवी देवता
अराउंड 300 इफ आई एम नॉट रॉन्ग रघुनाथ जी को हर साल दशहरे वाले टाइम पे उन्हें माथा टेकने आते हैं। अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा नहीं ये चला रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो चीज कोई भी नहीं कर पाया, जो शब्द कोई नहीं उठा पाया, वो उन्होंने उठा दिया। आप भी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपको भी पता है कि आपकी कोई ना कोई कुल देवी होती है। सो आई एम ऑल्सो अ हिंदू। मेरी मम्मी के साइड में उनकी कुल देवी है चिंतपूर्णी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन। एंड मेरे पापा के साइड में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ओन कुल मीन्स अ स्मॉल क्लैन ऑफ पीपल। एंड उनका कोई ना कोई डेटी होती है या कोई ना कोई भगवान होते हैं, तो जो उन स्पेसिफिक लोगों की रक्षा करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मिसफॉर्चून एज आई रेड ऑन द इंटरनेट। सो सिमिलरली कुल्लू में जो राज घराना है, द रॉयल फैमिली ऑफ कुल्लू, उनकी जो कुल देवी है वो है हडिम्पा माँ। यहाँ पे हडिम्पा माँ है ना, आएंगे अभी। ये चुकी है, पता नहीं ये उनका घर है। अच्छा। और हम वहाँ पे भी गए थे, हम वी सॉ देयर पैलेस एंड देन Garmati told us, and by the way Garmati is a local, so I feel like things on the internet go through a lot of filters, in the sense that a lot of people that are not from Kullu will document their experience there, somebody like me, but and it will go through a lot of edits also. Then you also have the fact that you translated it from Hindi to English, and somewhere stories get molded. That is why I have stuck to what I heard from a local. So talking about Hidimpa Ma, they told us that whenever Hidimpa Ma comes, so all the people in the family, they hide, and only when she calls them do they actually come out, because उनको ये दिखाना है कि ये आपका ही घर है, ये आपका ही घर है, आप जब मन करे आप आ सकते हो। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द कुल्लू दशहरा इज़ ये जो 300 देवी देवता अपने अपने कुल से आते हैं रघुनाथ जी का दर्शन करने। जहाँ को ये दौरा देंगे ना वहाँ को ले चलेंगे। मतलब इसमें नहीं जाना बने तो मुड़ेगी पूरा मतलब घुमाती है। उनमें इतनी शक्ति होती है कि जो उनको अपने कंधे पे लेके आता है वो अपने आप झूलते हैं अकॉर्डिंग टू द इमोशंस जो देवी देवता फील कर रहे हैं। हमने देखे तो बहुत सारे थे, क्योंकि 300 है तो पूरा कुल्लू उनसे भरा हुआ होता है। सो यू विल कम अक्रॉस सो मेनी देवी देवता थ्रू आउट द इंटायर दशहरा। वी सॉ दैट यू नो द देवता वो ऐसे झूल रहे थे, और जो दो लोगों उन्होंने कंधों पे पकड़ा होता है उनके लिटरली लाइक देयर एंटायर नेक गोज रेड, बिकॉज वो इतने पावर से झूल रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव सो मच इमोशंस। एंड जो लोगों ने कंधे पे भी उठाया होता है वो लोग भी खुशी खुशी करते हैं ये सब कुछ। एंड इट्स जस्ट सो मैग्निफिसेंट टू सी दैट यू नो, एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट क्वेश्चन कि ये एक्चुअली में अपने आप हिल रहा है या फिर ये लोग हिला रहे हैं उसको। लेकिन if you look at it, I don't think कि लोग हिलाएंगे and they would cause themselves harm, you know, अपने shoulders में, और वो भी continuously for I think more than 300, I'll insert the amount of years here, and इतने सालों से ये प्रतिष्ठा चल रही है, एंड अभी तक भी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। उस टाइम पे इतनी भीड़ होती है, दशहरे के टाइम पे इतनी भीड़ होती है, कभी कभार देवी देवता एक दूसरे से भी मिलते हैं तो वो ऐसे झूम रहे होते हैं, एंड द पीपल जिन्होंने उनको कंधों पे बिठाया होता है वो लोग भी झूम रहे होते हैं। जेन्युइनली सो सरियल, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड ऑल्सो हर देवी देवता का एक गुर होता है, जो गुर होता है गुर कम्युनिकेट करता है कि देवी देवता जो है वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर देवता थे इनके गुर ने कम्युनिकेट करा कि उनको रघुनाथ जी के चरणों से एक फूल चाहिए, और वो तब तक वहाँ पे रहे जब तक उनको वो फूल नहीं मिल गया।
एक बार उनको फूल मिल गया तो वो आराम से लौट गए। यहाँ पे सारे देवी देवता स्टेशन है, मतलब यहाँ पे रुके हुए हैं सब। और अब ये पहुँचेंगे ग्राउंड में जहाँ पे रघुनाथ जी पहुँचेंगे। ऐसा मेरे को दी ने बताया था कि जो हडिम्बा माँ, बिकॉज हडिम्बा माँ वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी। You can actually type into Google and read about Hidimba Ma. She was there is mention of her in the Ramayana. She was actually a demon's, I'm not sure, मैंने भी history में पढ़ा था, she was actually a demon's sister, लेकिन उन्होंने शायद भीम से विवाह किया था और इसलिए उनको पूजा जाता था और उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया था। जो पांडव्स थे उनके एक भाई से विवाह किया था भीम। वो बहुत ओल्ड थी, तो जब गुर बात करता है हिडिम्बा माँ का, उसकी जो आवाज है इट बिकम्स ऑफ एन ओल्ड लेडी। आफ्टर वी वेंट टू द टेम्पल, वी वेंट टू द ढालपुर ग्राउंड। सो ढालपुर ग्राउंड में सारे देवी देवता आते हैं और वहाँ पे वो एक दूसरे से मिलते हैं और रघुनाथ जी से मिलते हैं। और ड्यूरिंग द इंटायर टाइम जब रघुनाथ जी अपने मंदिर में होते हैं तब भी देवी देवता उनसे मिलने आते रहते हैं। अब जैसे वो खोलेंगे ना तो औरतें सारी अंदर चल जाएगी। फिर वो गाना नहीं गाते, सियावर राम आए हैं, वो कैसे गाना था समझ गया? पधारो कौन सा था यार? पधारो मेरे देश। रुक जाए यार, नहीं राजस्थान नहीं। When we were there, हम रघुनाथ जी के मंदिर में जा रहे थे उनके दर्शन करने। तो क्या हुआ कि 3 या 4 नहीं, मोर देन दैट, आई थिंक 6 देवी देवता एकदम से आ गए और हम घिर गए, लाइक विद सो मच भीड़। नाउ देयर वाज दिस गाय इन फ्रंट ऑफ अस जिनके हाथ में देवी देवता थे, इधर देवी देवता थे और इधर देवी देवता थे। नाउ दीज आर वेरी हैवी। हालांकि देवी देवता छोटे होते हैं लेकिन उनके ऊपर 2 चद्दरें होती हैं, क्योंकि उनमें शक्ति आ जाती है तो वो काफ़ी भारी हो जाते हैं। तो बेसिकली इतने सारे देवी देवता थे और वो सब झूम रहे थे और हम बेसिकली देवी देवताओं से घिर गए थे। अब जो देवी देवता थे वो कुछ झूम रहे थे, कुछ वेट कर रहे थे रघुनाथ जी से मिलने का, और जो भी था उसमें बहुत सारी भीड़ थी और हम लिटरली फंस गए थे कि हम अंदर कैसे जाएं। एंड एट दैट पॉइंट द crowd was so tight that I thought we are not going to make it. Either I'm going to get trampled to death या फिर मेरे वो जो एक से 2 लॉग्स होते हैं जो लोगों के कंधों पे होते हैं, एक आगे बंदा होता है और एक पीछे बंदा होता है जिन्होंने देवी देवताओं को पकड़ा होता है, वो लिटरली हमारे सामने था। एंड आई थॉट दैट आई विल गेट हिट बाय इट and I would either break my face or my teeth, और या कुछ ऐसा हो जाएगा। We were so scared। अब हमें बोल रहे कि आप कहाँ फंस गए, आप लेडीज कहाँ फंस गए। सारे जो देवता को उठाते हैं वो हमेशा मैन ही होते हैं, तो they were like आप लेडीज कहाँ फंस गए, अब क्या होगा एंड एवरीथिंग। बट देयर वाज दिस वन मैन who was like कि नहीं आप निकल जाओगे। और उन्होंने बोला कि हडिम्बा माँ को पकड़ो और अंदर चले जाओ। हडिम्बा माँ और सब अदर माता, कोई तो माता थी जो हमारे सामने थी। एंड एक अंकल ने बोला कि आप एक काम करो, उनको पकड़ो और अंदर घुस जाओ। कोई नहीं अब आपको वही निकालेंगे। तो उन्होंने हमें मोटिवेशन की कि हम इससे निकल सकते हैं। एंड देन हम लिटरली ऐसे भीड़ अंदर गई एंड हम अभी इस भीड़ से आए निकल के, और हम लेडीज़ थे और हमें बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं था ये करना जो हमने स्टंट पुल ऑफ किया है, लेकिन फिर भी हम इतनी भीड़ से निकल के आए और देवता ऐसे हिल रहे थे और मेरे बाल ऐसे लोगों की बगलों में अटके हैं और हम सारे देवताओं के बीच में फंसे हुए थे। हाँ, और सारे देवता यहाँ पे फ्लिप कर कैमरा, सारे देवता रघुनाथ जी के दर्शन करने आए हैं, हाथ जोड़ लगा रहे हैं। सारे देवता यहाँ पे रघुनाथ जी अंदर है। रघुनाथ जी मतलब राम सीता हनुमान जी का अवतार है। ये सारे देवताओं का माथा टेकना है। मैं तो नहीं हटूंगी साइड, मतलब तो अंदर ही जाऊंगी। मेरे को लगा एक आधा ये जो वो है ना, मेरे को लगा ये मुंह पे लगेगा मेरे को लगा मेरा आज एक आधा दांत जाएगा।
बट हम फिर भी सही सलामत आ गए। हमने माता का रथ पकड़ा और हम खुश रहते हैं। और मेरा एक पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को इस साइड खींच दिया कि लेडीज उधर। और मेरे को एक पंडित जी ने ऐसे लिटरली क्राउड से खींचा है इन अ गुड वे बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू सेव मी कि मुझे चोट ना लग जाए। एंड रिमेंबर व्हेन आई सेड कि इतने सालों में कभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आई थॉट दैट आई डाई। आई थॉट कि हम लोग को चोट लग जाएगी और उस टाइम भी इतनी भीड़ में भी हमें कोई चोट नहीं लगी, विच टू मी इज मिराक्युलस एंड इट ओनली फर्दर let me know that this is indeed very very real. So anyways, so in the Dhalpur ground when we entered, जहाँ पे भी बहुत भीड़ थी because one important person coming was not enough and Modi ji also had to come to the Kullu Dussehra. तो वहाँ पे रघुनाथ जी को की रथ लोग खींचते हैं। उस रथ पे शायद 1 या 2 लाख लोग हाथ रख देते हैं। उस रथ को आपने खींच दिया तो कहते हैं कि आपके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। एवरीवन ट्राइज टू रीच फॉर दैट, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़का हो जाता है। एंड देन विद द मोदीज विजिट वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सो वी गॉट आउट ऑफ दैट बट वी डिड विटनेस सो मेनी देवी देवतास कमिंग इन देयर एज वेल। आई केप्ट आस्किंग माई सिस्टर कि हमें तो रघुनाथ जी की रथ खींचने को नहीं मिली तो हमें कोई पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। And then my sister said कि yes, because look at the fact that you would go to meet these देवी देवतास individually. Like जैसे आप चिंतपूर्णी जाते हो या फिर हिडिंपा माँ को देखने जाते हो या आप इनसे मिलने जाते हो, you have to go to meet them individually. लेकिन यहाँ पे 300 देवी देवता रघुनाथ जी से मिलने आए, इसी बहाने हमें भी 300 देवताओं की एनर्जी में रहने का मौका मिलता है। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। That was the story of Kullu Dussehra and how magical of a place it is. I think it's beautiful and it isn't as well known as I think it should be. In fact, in the entire world, it should be very well known. That is why I kind of made this video very informational because I think that it's definitely worth a visit. And you should definitely go visit Kullu during the time of Dussehra and witness this very magical, spiritual, magnificent place. And you'll get your blessings from like more than 300 devtas. So like, how cool. हमने मार्केट में भी बहुत कुछ खाया। अब हम गरमदी की मम्मी ने हमारे लिए राजमा चावल बनाया, वो खाएंगे। और ये मैं हूँ क्या? Anyways, that's about it and I may or may not make my day 3 vlog because उसमें इतना ज़्यादा है नहीं and also I don't know how it would be of any help to you and I also don't have a travel channel technically. If सारी वीडियो पसंद आई तो like the comment ज़रूर करियो because unlike the guy or girl you're interested in, I reply really fast. And साडी नवी वीडियो ਲਈ subscribe to Sorry Not Sorry. ठीक है, हम मोमोज खाए और ये क्या है? सिड्डू मूसेवाला।